Students, kindly be attentive. I have an announcement for all of you. और वो announcement ये है कि today you have to be very attentive, you have to be very vigilant, because आपका जो quiz है इस कोर्स का वो भी hopefully आज जो है वो अपलोड हो जाएगा और वो आप लोगों ने सॉल्व करना है उसको टाइमली, ठीक है। और वो आप लोगों को पता है कि क्विज अगर आप लोगों ने मिस कर दिया तो उसकी मार्किंग आप लोगों की 0 हो जाएगी, ठीक है। सो काइंडली वेट फॉर क्विज, ठीक है। वो आपको पता चल जाएगा इस क्लास के इन बिटवीन या इस क्लास के बाद आप लोग चेक कीजिएगा और उसको आप लोगों ने मस्ट अटेम्प्ट करना है। तो आई रिपीट कि अगर कोई भी स्टूडेंट इस क्विज को मिस करेगा तो आपका जो मार्क्स हैं वो इसके इंक्लूड नहीं होंगे। सो जी क्विज की हवाले से आप लोग अगेन बहुत ज्यादा आप लोगों ने अटेंटिव रहना है। और नेक्स्ट हम लोगों ने यूनिट नंबर 6 की स्लाइड 17 से इसको स्टार्ट लेना है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में क्या चीज बताई जा रही है। अच्छा जी, ये आपके पास टॉपिक है एक्रेडिटेशन फॉर क्वालिटी इन प्रोग्राम्स। तो ये जो प्रोग्राम है 2015 का, इट हैज elaborated that the Higher Education Commission has set up an accreditation authority, National Accreditation Council for Teacher Education. This will look after the matter regarding accreditation of institutions and their departments, faculties and disciplines by giving them appropriate ratings and define the organization's objectives, functions and duties to be performed. It will periodically evaluate institutions and their affiliated colleges offering education degree program. इसके स्कोप में आप हमारे पास नेक्स्ट 6 पॉइंट्स हैं, जिनमें से फर्स्ट ये है कि ऑल द एग्जिस्टिंग टीचर एजुकेशन डिग्री प्रोग्राम्स शैल बी विद इन द jurisdiction of the council. Any new program in teacher education shall also be referred to the council for the grant of accreditation. The next point is the accreditation will be for specific degree programs and not institutions. On next slide, we can see point number 3, and it is that accreditation shall be mandatory for all relevant academic programs offered by public and private sector institutions. The council shall assist and advise teacher education institutions in planning their academic and professional programs. The council shall support the intellectual development of prospective teachers, means students who are interested in pursuing the teaching profession, and provide professional assistance to the concerned organizations. The council shall consider the following aspects using set criterion for granting accreditation of degree programs in teacher education subjects. तो बात यहाँ पर क्या हो रही थी कि आपके पास जो एक्रेडिटेशन फॉर क्वालिटी प्रोग्राम्स का ये एक इनिशिएटिव था, जिसकी मदद से जो टीचर्स हैं हमारे पास उनकी कैसे उनको क्रेडिटेबल बनाया जा सकता है, उनकी क्रेडिबिलिटी कैसे इंक्रीज की जा सकती है। तो उसके लिए एक काउंसिल सबसे पहले एस्टेब्लिश हुई और फर्दर उस काउंसिल की कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं थी, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास आ जाता है ओवरऑल स्कोप ऑफ द प्रोग्राम। सो देयर आर सम पॉइंट्स फॉर द स्कोप, एंड फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है कि करिकुला और सिलेबस मैचिंग विद द लेवल ऑफ डिग्री प्रोग्राम, द रिक्विजाइट इंफ्रास्ट्रक्चर, द फैकल्टी number and qualifications, level of compatibility with international standards and trends, level of skills to be developed by the program, student support services, library facilities, internship practice teaching facilities, facilitate for student activities and other amenities,
financial assistance or loan, etc. Level of job placement of graduates, level of market needs fulfillment. तो ये जो पॉइंट्स थे इसमें आपके पास आ रहा था कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना कितना रिक्विजिट है, ठीक है, कितना ज्यादा कंपलसरी है कि एक आपके पास प्रॉपर बिल्डिंग हो, ठीक है, प्रॉपर एक ऐसा सेटअप हो जिसमें वर्क किया जा सके, ठीक है. उसके बाद आपके पास ये बात आ रही थी कि जो फैकल्टी नंबर है कि आप डिसाइड कर लें कि आपने कितने टीचर्स को अपॉइंट करना है, ठीक है, कैसा आपका वर्कलोड होगा और उनकी जो क्वालिफिकेशंस हैं वो क्या होंगी. ओके, इसके अलावा इसमें जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात थी वो थी जी आपकी इंटर्नशिप, ठीक है, या प्रैक्टिस टीचिंग फैसिलिटीज. के इंटर्नशिप के जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल बनाई जाएं टीचिंग फील्ड में, ठीक है. सो ऑन नेक्स्ट स्लाइड नंबर 20 में हमारे पास इसके फंक्शंस हैं, ठीक है. सो इस काउंसिल के बहुत ज्यादा फंक्शंस हैं वैसे तो, ठीक है, तो उसमें से कुछ यहाँ पर समराइज किए जाएंगे आपके सामने और ये टोटल 12 हैं. तो इसमें फर्स्ट ये आ रहा है कि टू स्टडी एंड डेवलप पॉलिसीज एंड प्रोसेसेस फॉर एक्रेडिटेशन ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स लीडिंग टू अ डिग्री और अ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा. Number second is to lay down criteria on which teacher education degree programs shall be assessed and equated. To inspect teacher education institutions for ascertaining whether those institutions are functioning in accordance with the provision of relevant universities regulations. Slide number 21. Point number 4 is to approve a list of auditors for different fields to participate in the process of accreditation of teacher education programs. To constitute an accreditation inspection committee to evaluate and audit process from the list of auditors. The said committee will send its recommendations to the council for making decision. The selection criteria for such auditors will be made by the council. To propose, consider and approve the policies and procedures for accreditation. To consider and make decision on any appeal with regard to accreditation. To publish a list of ranking of teacher education programs. To promote intellectual development and understanding of subject areas that impact accreditation related activities in the teaching profession. To collect, collate, index, publish and disseminate information and research findings on teaching profession and to support the teacher education institutions for quality assurance. To prepare guidelines and procedures to train program auditors and guide them how to assist the institutions in planning their academic programs for accreditation purpose and future progress. To prepare annual report on the activities of the council and submit it to the chairperson HEC, means Higher Education Commission. So next slide is related to problems in Pakistan. और ये प्रॉब्लम्स भी टीचर एजुकेशन से रिलेटेड हैं कि जो पाकिस्तान में टीचर्स हैं वो एजुकेटर्स बनने से पहले, ठीक है, या इस दौरान वो कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो जिनसे गुजर कर आते हैं, जो उनको फेस करने पड़ते हैं. तो UNESCO reported in 2006 that the quality of education provided in the government schools of Pakistan had been poor due to. There are certain factors or certain reasons mentioned in this slide as low levels of teacher competence. Next, lack of classroom-based support for teachers, lack of systems to assess student learning outcomes, uneven supervision, insufficient resources for critical teaching and learning materials.
वीक सेक्टर गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। तो यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये कि टीचर को क्लासरूम सपोर्ट ही हासिल नहीं होती, कि अथॉरिटी की तरफ से उसके ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन होती है कि जो उसको कहा जा रहा है, जो ऑर्डर है वो उसने फुलफिल करना है। हालांकि अगर टीचर्स को थोड़ा सा फ्री हैंड दे दिया जाए तो उसके भी आउटकम्स बेस्ट हो सकते हैं। ठीक है जी। तो इसके अलावा भी कि सुपरविजन भी होना इसके साथ साथ जरूरी है, ताकि एक चेक एंड बैलेंस जो है वो हो सके। ठीक है। और जो अकाउंटेबिलिटी है, जो वीक एरियाज हैं वो टाइमली आइडेंटिफाई होते रहे, गैप्स का पता चल जाए और फिर उन चीजों को उसी जगह पर इम्प्रूव कर लिया जाए। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और हमेशा जब भी हम लोगों को प्रॉब्लम्स की बात करनी होती है तो हम लोगों को उसके साथ उसके सॉल्यूशन भी, पॉसिबल सॉल्यूशन भी मस्ट उसके सामने लेकर आने चाहिए। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। एशिया एंड द पैसिफिक प्रोग्राम ऑफ एजुकेशनल इनोवेशन फॉर डेवलपमेंट in 1997 highlighted some problems in teacher education in Pakistan as। अब आपने देखा कि हमारे पास दो ये रेफरेंसेस आए हैं, एक यूनेस्को का और दूसरा ये जो एशियन पैसिफिक प्रोग्राम है, इसका भी एक रेफरेंस सामने आ रहा है। ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा ओल्ड रेफरेंस है और इसके भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या पॉइंट्स हैं। सो फर्स्ट इज द शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स, जिसमें रिसेंट हम लोगों ने रिफॉर्म्स, हम लोगों को पता है कि जो बीएड डिग्री है उसमें प्रोमिनेंटली अगर देखा जाए तो टेन्योर को रिवाइज किया गया है। मिनिमल इंटरेक्शन ऑफ ट्रेनी टीचर्स एट स्कूल्स, outmoded methods of teaching and evaluation at colleges, shortage of audio-visual aids and other educational equipment in teacher training institutions or colleges, deficiency of supplementary reading material or professional magazines or research journals, lack of coordination among teacher education institutions, absence of incentives for prospective teachers, theoretical teacher education, lack of accountability। बट अगर हम लोग अभी थोड़ा सा सेकेंड लास्ट पॉइंट पर गौर करें, ठीक है, अभी हमारे रीसेंट टाइम में, तो इस पर थोड़ा सा आप लोग सोचो कि जो थ्योरेटिकल टीचर एजुकेशन है, क्या ये एक प्रॉब्लम हो सकती है पाकिस्तानी केस में? सो यस, यहाँ पर तो मेंशन है, बट हाउ? We have to think that how theoretical teacher education is a problem in Pakistan. Because जो theory है वो बहुत ही ज्यादा old कॉन्सेप्ट्स पर वो रिलाय कर रही है। ठीक है। डेफिनेटली जो ओल्ड हमारी हिस्ट्री है, ओल्ड बैकग्राउंड है, उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। ठीक है, उसकी अपनी एक वैलिडिटी है। बट करंट टाइम में जैसे जैसे चीजें चेंज हो रही हैं, चीजें अपडेट हो रही हैं, तो इस चीज को भी मस्ट इनोवेट करना चाहिए। ठीक है। तो थ्योरेटिकल टीचर एजुकेशन जो है वो दिस इज नॉट इनफ, तो दैट्स व्हाई इट इज अ प्रॉब्लम इन द केस ऑफ पाकिस्तान। इसके अलावा भी बाकी जितने पॉइंट्स थे तो वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब लेक ऑफ इंसेंटिव्स, ठीक है, कि टीचर्स को प्रॉपर जो है वो पे पैकेज, ठीक है, रिवार्ड सिस्टम उनका नहीं है। हालांकि अगर हम लोग कंपेयर करें बाकी कंट्रीज से तो वहां पर टीचर्स को बहुत ज्यादा रिगार्ड दिया जाता है और यहाँ पर बहुत ज्यादा ऐसे इश्यूज फाइनेंशियल इकोनॉमिक हवाले से सामने आते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ एक और बात कि जो पाकिस्तानी टीचर्स के केस में एक प्रॉब्लम है कि आजकल तो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन ये हो गई है कि टीचर्स को रिगार्ड नहीं दिया जाता, राइट, कि उनको जो है रिस्पेक्ट वो नहीं मिल रही होती जितनी ड्यू होती है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, इस पर भी सोचना चाहिए। हालांकि बाकी अगर हम लोग अब्रॉड में देखें, फॉरेन में देखें, वहां पर ऐसा नहीं है, तो इस पर भी काम होना चाहिए। लिटिल होप फॉर अ कैरियर ट्रैक,
उसके बाद डेथ ऑफ मोटिवेशन, फेलियर ऑफ द सिस्टम लेड बाय द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। अब ये जो डेथ ऑफ मोटिवेशन है ये भी इसी वजह से कि टीचर जो है समटाइम्स वो उसको इतने टफ सिचुएशंस उसके पास आते हैं, ठीक है, इतने जो है वो रिजिड सर्कमस्टांसेस होते हैं या इतने जो है वो हार्श एनवायरनमेंट में वो काम कर रहा होता है कि जिसकी वजह से उसकी अपनी जो मोटिवेशनल नीड है वो आहिस्ता आहिस्ता मरती चली जाती है, ठीक है जी, उसकी डेथ होती चली जाती है। तो ये फिर हम लोग सोच सकते हैं कि ऐसा टीचर वो क्या फिर आगे से फ्रूट दे सकता है कि जब उसकी अपनी ग्रोथ सीज हो चुकी है। और इसी हवाले से कि जो इंसेंटिव्स पर हम लोगों ने इससे पहले बात की कि बाकी कंट्रीज में जो टीचर्स की सैलरीज हैं या जो टीचर्स के पैकेज हैं वो ज्यादा होते हैं। हालांकि पाकिस्तान में कंसीडर तो यही किया जाता है कि टीचर्स को सफिशिएंटली अमाउंट मिल रही है, ठीक है, बट दिस इज नॉट लाइक सो, कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। Okay, UNESCO in 2006 conducted a study on teacher education in Pakistan and observed that the level of students' achievements depicted the quality of education system that educates the students in general and that of the teachers teaching the students in particular. तो ये आपके पास था। उसके बाद हमारे पास है टीचर एजुकेशन इन इंडिया। तो इंडिया के हवाले से हम लोग थोड़ी सी डिटेल आप देखते हैं कि NCTE Teachers Education 2015 states that teacher training course in India is designed for aspiring teachers to learn interactive and better ways of teaching to make a subject interesting. और एक और बात जो बहुत ज्यादा नोटवर्दी है इंडिया के केस में कि आप इंडिया की कोई भी फील्ड ले लें, ठीक है, या कोई भी इंडस्ट्री जो है हम लोग स्टडी करना स्टार्ट कर दें तो हमें ऐसा कोई भी उनका फील्ड नहीं मिलता जो इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी के बगैर हो, ठीक है। मतलब कि उनका इतना ज्यादा फोकस आईटी के ऊपर है कि वर्ल्ड में ज्यादा जो पोर्शन है, मेजॉरिटी जो लोग फ्रीलांसिंग करते हैं वो इंडिया से बिलोंग कर रहे हैं। So I guess they have a position of number 2 और number 3 if I am not wrong. तो ये इंडिया के केस में ये कंडीशन चल रही है। So teaching methods have to be different for different age groups. For instance, primary level teaching is a lot different from secondary और college level. अब ये कहा तो जाता है कि जो प्राइमरी का टीचर है वो तो बहुत आसानी से पढ़ा लेगा, हालांकि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मोस्ट टफेस्ट जॉब इज बीइंग डन बाय आवर प्राइमरी एंड मॉन्टेसरी टीचर्स, कि सबसे ज्यादा टफेस्ट जॉब जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। Educational requirement for primary and secondary teacher is also different. People who wish to teach primary school should minimum pass higher secondary examination with 50% marks, whereas for teaching at secondary school, one needs to be postgraduate in the subject one wishes to teach. तो ये इंडिया का कंसर्न बताया जा रहा है कि वहां पर प्राइमरी के लिए हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन यानी कि जो एफए की क्वालिफिकेशन है वो भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन पाकिस्तान में हम लोग देखते हैं तो वो मास्टर डिग्री जो है वो एक्सेप्ट हो रही है। इसके बावजूद कि हम लोगों का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया वो इतना टफ है, ठीक है, हमारी जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत टफ करिकुलम पढ़ाया जा रहा है, लेकिन फिर कहाँ पर ऐसा ड्रॉबैक है, कहाँ पर ऐसी जो है वो मिस्टेक है जिसकी वजह से जो आउटपुट्स हैं वो अच्छे नहीं आ रहे, ठीक है। तो ये सोचने वाली बात है कि हमारा असेसमेंट का, हमारा इवैल्यूएशन का, ग्रेडिंग का, मार्किंग का जो प्रोसीजर है उसमें गलतियां हैं। लाइक हम लोग देखते हैं कि स्टूडेंट्स आसानी से 1100 बाय 1100 मार्क्स उनके आ रहे हैं, 1000 बाय 1000, 500 बाय 500। तो सोचने वाली बात है कि ऐसे जो साइंटिस्ट्स हैं या ऐसे जो इंजीनियर्स हैं हमारी जनरेशन में,
तो वो जस्ट इसी लेवल तक इंजीनियर और मेडिकल स्पेशलिस्ट बन के वो क्यों रह जाते हैं? जब वो नेक्स्ट हायर लेवल्स पर जाते हैं तो फिर उनके ग्रेड्स इस तरीके से क्यों नहीं आते? ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा आजकल तो कॉमन हो चुकी है ये बात, लेकिन साथ ही ये बात अच्छी भी नहीं है। ठीक है, इट्स मीन के पहले तो हमारे टाइम पर ये होता था, ठीक है, कुछ अर्सा पहले ये था कि पूरा कोर्स बच्चों को करवाया जाता था, फुल टेक्स्ट बुक्स उन्होंने करनी होती थी, और कुछ अर्सा पहले तक तो हिडन करिकुलम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, किसी को भी नहीं पता होता था कि ये हिडन करिकुलम भी कोई चीज है। What do I mean from this point? कि जो टीचर्स हैं वो कंप्लीट कोर्सेज बच्चों को करवाते थे, यानी ऐसा कभी नहीं होता था कि वो कोई चीज स्किप करवा रहे हो स्टूडेंट्स को कि हम बाद में कर लेंगे, या ये नेसेसरी नहीं है, या ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ऐसा नहीं होता था, बहुत रेयर केसेस हो सकते हैं, ठीक है, कि ऐसा कभी हुआ हो। लेकिन अब मोस्टली देखा जाए तो क्लासेस में जो पेपर स्कीम्स हैं वो चल रही होती हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स उन स्कीम्स को फॉलो करते हुए पढ़ते हैं और उनको ऑलरेडी पता होता है कि पेपर में क्या एक्सपेक्टेड है, क्या आना है, कौन सा क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है और उसके चांसेस भी हैं। ठीक है, आप लोगों को भी पता है कि लास्ट 5 years के जो मॉडल पेपर्स होते हैं, जो इस तरीके से पास्ट पेपर्स, ठीक है, वो सर्कुलेट हो जाते हैं मार्केट में, एक ट्रेंड बन चुका है इस हवाले से। तो ये जी बहुत ज्यादा चीजें ऐसी हैं कि जो हमारे एजुकेशनल सिस्टम को फ्लॉप कर रही हैं। ओके, देयर आर सेवरल स्कूल्स and colleges in India which cater to teacher training schools in India, and these offer teaching courses for different levels. Teacher education in India is institution based, along with internship programs in real classroom settings. Nordic Recognition Information Centers 2006 has highlighted the following teacher education structure in the country. Number first, diploma in teacher education or a primary teacher certificate. Elementary teachers are trained in teacher training institutes, also called junior basic training institutes or primary teacher colleges attached to state and university departments of education. The course usually lasts for 2 years and leads to a diploma in teacher education or a primary teacher certificate, PTC. Teachers are required to hold a bachelor's degree in education or in a few instances a bachelor of teaching. Number second is the B.Ed or BT. It requires 1 year of full-time study following a bachelor degree, normally in arts, science or commerce. Teachers at the upper secondary level normally are required to hold a master's degree in their area of teaching specialization. 4 regional colleges of education offer a combined 4-year integrated program leading to a bachelor's degree. Teachers at colleges of education must hold a MEd or and a PhD. Studies for these are undertaken at a number of universities. Instructors in technical and vocational schools are normally trained in central training institutes which offer 1-year courses, providing training in skills. नेक्स्ट आपके पास एक टेबल बना हुआ है, ठीक है, तो इस स्लाइड पर आप देख सकते हैं कि कंपिटेंस लेवल्स ऑब्टेन्ड एट इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइडिंग टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो ये कंप्लीट नॉर्डिक रिकॉग्निशन इंफॉर्मेशन सेंटर्स का जो रेफरेंस था, जो उसकी रिपोर्ट थी, उसकी बेसिस पर ये कंस्ट्रक्ट किया गया। ठीक है, ड्यूरेशन भी आपके पास मेंशन है, इंस्टीट्यूट्स मेंशन है, क्लास का लेवल, डिग्री कौन सी ग्रांट की जाएगी और लेवल ऑफ टीचर्स क्या, उसका नेम क्या होगा। तो ये सारा आपके सामने है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, which is committed to, among other things,
Developing the quality of teacher education, the role of NCTE is to unify and regularize teacher training. An Act of Parliament in 1993 gave it statutory powers regarding recognition of teacher education institutions, staffing and teacher education programs, as well as the means to develop teacher education. About 2,000 teacher education institutions are engaged in the preparation of teachers for different school stages. Now, accreditation of teacher education institutions. So, Pillai in 2015 says that accreditation in teacher education in India is primarily concerned with ensuring the quality of teachers trained from institutions and their fitness or suitability to serve the purpose expected from them. The next point is methodology of accreditation. So there are 3-stage processes for assessment and accreditation. और ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि कौन से 3 स्टेजेस हैं. So the first is preparation of self-appraisal report by the teacher education institution for submission to NAAC. तो टीचर अपने लिए जो है वो एक रिपोर्ट रिफ्लेक्शन अपना वो कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है, वो बनाता है और उसको सबमिट कर दिया जाता है इस काउंसिल में. नंबर 2 पर आपके पास है वैलिडेशन ऑफ सेल्फ अप्रेजल रिपोर्ट बाय पीयर्स विजिटिंग दी इंस्टीट्यूशंस. और लास्ट पे आपके पास है फाइनल डिसीजन ऑफ NAAC based on the self-appraisal report and recommendations of the team of peers. मतलब कि एक पूरा पैनल होगा जो इस चीज को जज करेगा, ठीक है, और इस चीज से रिलेटेड डिसीजन अपना पुट फॉरवर्ड करता है. ओके, नेक्स्ट हमारे पास इश्यूज हैं, ठीक है. तो इन इश्यूज को देखते हैं कि करिकुला फॉर प्री सर्विस एजुकेशन ऑफ टीचर्स डू नॉट गेट रिवाइज्ड often enough in response to changing circumstances. The revisions have to be reflected by nearly 100 universities and 31 state departments of education. There is a mismatch between teacher education programs and the availability of teachers in different subjects or geographical areas and for special groups, tribal and socially deprived groups. Shortages of teachers exist in fine arts, music and vocational areas at the secondary stage. The profession is not able to attract higher caliber graduates from the universities and boards of secondary education. Low salaries and poor living conditions in rural areas are considered responsible. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 है कि टाइम अवेलेबल फॉर प्री सर्विस एजुकेशन ऑफ टीचर्स इज इनएडिक्वेट फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेसेसरी एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज एट द सेकेंडरी लेवल. Little attention is paid to competence in subject matter. Induction programs are not available. There are several institutions and systems for in-service education of teachers ranging from school complexes at decentralized levels to programs designed and executed at the central level. But coordination between various agencies is yet to be obtained. अच्छा, ये जो डिसेंट्रलाइजेशन की बात हो रही है तो इट इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म कि जिसमें ये होता है कि लोकल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो बॉडीज होती हैं, ठीक है, या प्रोविंशियल लेवल पर जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है कि उसके एरिया में क्या चीज इम्प्लीमेंट होगी, ठीक है. और मतलब कि इसमें जो फेडरल एरिया है या जो फेडरल जरिस्डिक्शन है वो एक गाइडलाइन तो देती है, लेकिन आगे प्रोविंस की ये ड्यूटी होती है कि वो उस गाइडलाइन को फॉलो कैसे करता है, उसमें अमेंडमेंट वो करने के काबिल होता है, ठीक है, और वो चीजों को अपने हिसाब से रीशेप कर सकता है.
और इसके कंट्रास्ट में जो सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस है जिसमें ओनली फेडरल का कंट्रोल होता है ऑल ओवर दी कंट्री। तो उसके बाद आपके पास है कि अ सेल्फ कंटेन्ड सिस्टम ऑफ प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन नीड्स टू बी डेवलप्ड. Distance education, especially through the electronic media, needs to be extended. Separate अच्छा, ये पॉइंट नंबर 10 है कि एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन इज मेंट बाय पर्सनल एजुकेटेड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन. सेपरेट प्रोविजंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ एलिमेंट्री टीचर एजुकेटर्स हैव बीन प्रोवाइडेड एट ओनली अ फ्यू प्लेसेस. तो ये आपके पास थे कि इश्यूज क्या आ रहे हैं नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन को, उसकी एक्रेडिटेशन के जो मेथोडोलॉजी है उसके दौरान क्या इश्यूज सामने आते हैं. तो इन 11 इश्यूज को हम लोगों ने अभी देखा है. उसके बाद फ्यूचर प्लान्स फ्यूचर क्या हो सकते हैं, मतलब कि नेक्स्ट इसका क्या स्कोप बन सकता है. ठीक है, तो यहाँ पर है कि comprehensive institutions are being set up at the district level to look after the pre-service education of teachers for elementary schools and instructors for the non-formal and adult education programs as well as in service education of teachers. Next is the institution will be well staffed with proper infrastructure and extensive system of in-service education should be developed with institutions at the central, state and district levels having clearly defined responsibilities for program planning, monitoring and evaluation. Distance education via electronic media communications could be heavily used to meet the needs of large number of teachers. Teacher education institutions are to be appropriately equipped to prepare teachers in the use of computers. And the last point is the National Council of Teacher Education will be given appropriate status and powers to improve teacher education in the country. So this was all about your unit number 6 और ये आज complete हो गया है. ठीक है, so let me make the presentation downloadable for you. आप लोग काइंडली जो लोग डाउनलोड कर लें तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मस्ट मेंशन कर दिया करें कि आप लोगों ने कर लिया, सो दैट आई कैन चेंज इट एंड अपलोड द नेक्स्ट वन. जी, आई होप नाउ आपके पास डाउनलोडेबल ऑप्शन विजिबल होगा, तो आप लोग काइंडली यूज इट एंड टेल मी. And also you have to wait for 4 to 5 minutes so that our unit number 7 is uploaded yet, और उसको फिर हम लोग इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू करते हैं.